So welcome to the students. This is another lecture of the series जो हमने start किया है, that is the torsion in the circular shaft. You understand? So today my lecture is on comparison of the hollow shaft and solid shaft. Comparison means which shaft is better, whether the hollow shaft is better, whether the solid shaft is better, which can sustain more strength, or you can say which can sustain more torque, or which shaft is more lighter than the other when they are sustaining the same amount of torque. So these type of the conditions in case of the comparison of the hollow shaft and solid shaft, right? So when we compare the hollow shaft and solid shaft, first of all we will understand the strength of the shaft, right? So सबसे पहले तो हमें strength के बारे में पता होना चाहिए कि strength के बारे में डिस्कस करेंगे, because the comparison of these two shafts, they can be made on the basis of their strength also, you understand? So strength of the shaft is what? So you can say strength of the shaft, that depends upon the very important parameter. शाफ्ट का जो स्ट्रेंथ है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. यू अंडरस्टैंड? So cross-sectional area, that is the very important parameter. On the basis of that, we can compare or we can calculate the strength of the shaft, we can calculate the strength of the bar, we can calculate the strength of the beam. So you can say that cross-sectional area that plays very important role in that. In case of the strength of the bar, how it plays very important role there, let us understand. And you know that the strength of the shaft, that depends upon two things, that is the material strength. जो shaft का strength है या किसी भी body का strength है, that depends upon two things. That first क्या है? Geometry of the shaft and material and geometry of the shaft. You understand? So that depends upon two things. That is first material and second one is geometry. राइट? मटेरियल और ज्योमेट्री के ऊपर ये डिपेंड करेगा. ज्योमेट्री मीन्स एरिया, शेप एंड साइज, दैट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी. एंड मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर मटेरियल क्या है, बिकॉज एवरी पर्टिकुलर मटेरियल इज़ हैविंग इट्स ओन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. उसका इलास्टिसिटी डिफरेंट होगा, जंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू डिफरेंट होगी. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, दैट इज द मटेरियल एंड ज्योमेट्री. यू अंडरस्टैंड? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर कंसिडरिंग द बॉडी, और यू कैन से वी आर कंसिडरिंग ए वार दैट इज सब्जेक्टेड टू द एक्शियल स्ट्रेस. राइट? एक बार है, उसके ऊपर क्या है? Axial stress is acting on the bar. You understand? And we have to calculate that how much the load that bar can sustain without failure. We have to calculate the value of the load. कि कितना लोड वो सस्टेन कर सकती है फेलियर से पहले. यू अंडरस्टैंड? दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बार. यू अंडरस्टैंड? तो आपको पता है कि सिग्मा अगर एक बार है और उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द बार,
and we have to calculate the load, that how much load that bar can sustain without the failure. You know that the sigma maximum, this is equal to P upon A. This you know that load upon area, right? एरिया का जहाँ पे क्या आएगा, साइज आएगा. वी आर नॉट कंसिडरिंग द शेप हियर, जहाँ पे सिर्फ एरिया का साइज आएगा. तो अगर आपको लोड निकालना है कि हाउ मच दिस वार कैन सस्टेन द लोड विदाउट फेलियर, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इनटू ए. यू अंडरस्टैंड? तो लोड किसके ऊपर डिपेंड होगा? सिग्मा मैक्सिमम इनटू ए. सो यू कैन से the maximum load on the bar, or you can say that how much maximum load this particular bar can sustain without failure, that we have calculated by using this equation, where A is the area. A क्या है आपका? एरिया है. और एरिया में क्या है, ये सिर्फ साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसका शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि एरिया का साइज़ क्या है. यू अंडरस्टैंड? एरिया का साइज़ क्या है, एंड वी विल कैलकुलेट द सिग्मा मैक्सिमम. सो दिस इज द स्ट्रेंथ, हाउ वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन केस ऑफ द बार. यू अंडरस्टैंड दिस? एंड इन केस ऑफ द बार, एज आई टोल्ड यू that the cross sectional area is a very important parameter in case of studying the strength or calculating the strength of any body. तो जहाँ पे आपने देखा कि एरिया, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, बट एरिया जहाँ पे ओनली वी आर टेकिंग द साइज हियर. नाउ कम टू द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, राइट? अब शाफ्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर आएंगे. तो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विच इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्शन, द स्ट्रेंथ हमें क्या निकालना था, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द शाफ्ट. द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू torsion, right? Strength of the shaft subjected to torsion. तो हमारा इक्वेशन है, टॉर्शन का एक इक्वेशन है. वो क्या इक्वेशन आपका? T अपॉन J, दिस इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर मैक्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टॉर्शन. एक पार्ट ये लिखा है मैंने, दिस इज द वन पार्ट आई हैव टेकन हियर. T upon J, this is equal to tau max upon R max. So you can say that T जो strength है आपका, this is equal to tau max into J upon R max. You understand this? तो strength की torque कितना हुआ? Value of torque, that is, so you can say that how much torque this particular shaft can sustain without the failure, right? This is the equation to calculate the shaft. Now here you have seen that torque depends upon the three things here, whereas tau max, तो मैंने आपको बताया, that is the maximum shear stress. ये क्या है? ये मैक्सिमम shear stress है, and that depends upon the material, that is maximum shear stress. और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, कि शाफ्ट में कौन सा मटेरियल ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है ना? डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल of shaft. So you can say having fixed value, इसका value तो fix रहेगा. You understand? So this is having the fixed value. ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल ऑफ द शाफ्ट जो भी होगा उस पर इसकी वैल्यू फिक्स होगी. नाउ यू कैन से T जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
J upon R मैक्सिमम। यू अंडरस्टैंड? एक तो J के ऊपर करेगा, टाउ मैक्स के ऊपर किया तो इसका वैल्यू फिक्स है, तो इसमें कोई फर्दर चेंज नहीं होगा, ये तो वैल्यू फिक्स रहेगा। J के ऊपर डिपेंड करेगा और R मैक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नो व्हाट इज योर J? J क्या है? व्हाट इज योर J? दिस इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। What is your J? This is the polar movement of inertia. Now, what is the polar movement of inertia? Engineering mechanics में you have read already that movement of inertia and polar movement of inertia क्या होता है? Polar movement of inertia means movement of inertia above the normal axis. अगर ये आपका इसका शाफ्ट का, ये आपका नॉर्मल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यू अंडरस्टैंड? तो अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो दैट एक्ट ऑन द पैरेलल एक्सिस। जो पैरेलल एक्सिस के ऊपर एक्ट करेगा दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो नॉर्मल एक्सिस के ऊपर एक्ट करेगा दिस इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यू अंडरस्टैंड? सो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका वैल्यू फॉर सॉलिड शाफ्ट लिख रहा हूँ मैं, दिस इज π/32 d⁴, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। इसी तरीके से अगर आपने पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो शाफ्ट का लिखना है, सो दिस इज π/32 इंटू इफ d0, दिस इज द आई विल से ये आउटर डायमीटर है आपका, सो दिस आउटर डायमीटर इज d0, राइट। जो इनर डायमीटर है शाफ्ट का दैट इज का द di और d, ये आपका इनर डायमीटर है, दिस इज di, राइट। तो इस केस में जो आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर हॉलो शाफ्ट, क्या होगा? π/32 इंटू d⁴ माइनस d⁴, राइट। सो दिस इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ द हॉलो शाफ्ट। यू अंडरस्टैंड? अब polar movement of inertia, what is that? So polar movement of inertia means this is the normal axis of the shaft. Polar movement of inertia means that how much far the area of the shaft is separated, right? Distributed. How much far the area of the shaft is distributed, right? So this is called the polar movement of inertia. तो J जो आपका है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, J किसके बराबर होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दिस इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो वी कैन से दिस इज एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज हाउ फार द एरिया इज स्प्रेडेड फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस, कि नॉर्मल एक्सिस से कितना दूर इसका एरिया स्प्रेड हुआ है, दैट इज योर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जस्ट देखिए इन केस ऑफ दिस सॉलिड शाफ्ट, तो इसका जो एरिया है ये नॉर्मल एक्सिस के पास पास ही है, इट इज़ नॉट टू फार फ्रॉम दैट। But if we will consider this hollow shaft, you can say
that the area of this hollow shaft that is spread too far from the normal axis, because this is the hollow having no area of the shaft, and this is the area which is shown by the red line. So this is spread too far. You understand that? So from here you can say that strength of the shaft that depends upon the shape and size of the क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब देखिए ये सिर्फ एरिया के क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये तो इसकी शेप के ऊपर भी करेगा. अब यू हैव सीन दैट इट्स शेप इज डिफरेंट. दिस इज हैविंग ए हॉलो शेप, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट. एंड जो आपका स्ट्रेंथ का इक्वेशन है, जो टॉर्क का इक्वेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन जे. यू अंडरस्टैंड? वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जे अपॉन आर मैक्स. जे मीन्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे एज ए टोल्ड यू कि जहाँ का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ डिफरेंट, जो जहाँ का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जहाँ का डिफरेंट, तो यू कैन से अगर दिस इज द सॉलिड शाफ्ट एंड दिस इज द हॉलो शाफ्ट, यू अंडरस्टैंड, but their polar moment of inertia is different because its area having the same weight. जब भी कंडीशन इसकी करेंगे, suppose it is having the same weight, इनका weight same है, material same है, everything is same, still the polar moment of inertia of these two shafts are different. You understand that? इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. बिकॉज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि हाउ much far the area is spread from the normal axis, distributed from the normal axis. You understand? So you can say that the strength of the shaft that not only depends upon the size of the area but it depends upon the shape of the area also. You understand that? क्योंकि जो बार के केस में वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? Strength of the bar that depends upon the size of the area. You understand? But in case of shaft, the strength of the shaft that depends not only on the size of the area but it depends upon the shape of the area. You understand that? ये चीज़ें जहाँ से आपको क्लियर होंगी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. You understand that? Now this is the basic thing which we have discussed about the strength of the shaft. कि strength of the shaft जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. How we can measure the strength of the shaft? Strength of the shaft को हम कैसे मेयर करेंगे? By using this equation, टॉर्शन इक्वेशन को यूज़ करके. जहाँ से आप देखें तो strength of the shaft that depends upon J upon R max. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? Because tau max is fixed, having the fixed value, but that depends upon the J upon Rx. तो R max का हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. जब मैं एनालिटिकल बेस से प्रूव करूँगा तो यू विल फाइंड दैट R max, जो इसका R max का वैल्यू है और जो इसका R max वैल्यू है, इज़ हैविंग ए वेरी स्मॉल डिफरेंस इन दैट केस. इफ बोथ द शाफ्ट्स आर हैविंग द सेम वेट, अगर इनका वेट सेम है, both the shaft are having the same weight, the value of R max is having a very small difference. So we can ignore that difference. Practically you can say that practically the comparison of the hollow shaft and the solid shaft that purely depends upon the, किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका? J के ऊपर, that is polar moment of inertia. You understand? और polar moment of inertia में आपने देखा that is equal to area into distance square, right? Polar moment of inertia क्या है? Area into distance square. So it means that strength of the shaft that does not depend only on the area of the shaft, that depend upon the shape of the cross sectional area also. You understand this? तो जहाँ तक हो गया. Now there are the two conditions, two ways to compare the hollow shaft and solid shaft. One thing is weights are equal and strength is different. तो पहला
तो equal weight, weights are equal means equal weight with different strength. So comparison में we take two cases here. First है आपका equal weight with different strength, right? And second thing is equal strength with different so we will consider two cases here. In case of comparison of the hollow shaft and the solid shaft, one thing is equal weights with different strength. So what does it mean, equal weights? Means we are having the two shafts, that is the solid shaft and hollow shaft. They are having the equal weights. Equal weights means they are having the equal quantity of the material. जो material है वो क्या है उनका, that is equal, right? So you can say equal quantity, जो पहली condition है, ये पहली condition है equal weight with different strength. पहले तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे कि अगर वेट इक्वल हो और स्ट्रेंथ डिफरेंट हो, उस केस में कौन सा शाफ्ट हमारा बेटर होगा. फर्स्ट केस इज दिस. अब इक्वल वेट मीन्स दे आर पुटिंग द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, और यू कैन से दे आर हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल. कि ये जो मटेरियल है इसमें सॉलिड में और इसमें हॉलो शाफ्ट में, इनका जो अमाउंट है मटेरियल का वो क्या है, सेम है. सो सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल मीन्स द कास्ट ऑफ द मटेरियल इज सेम. इन दैट केस देयर इज नो डिफरेंस. जो मटेरियल का कास्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा. हियर ओनली आई एम कंसिडरिंग द प्राइम थिंग, दैट इज द मटेरियल ऑफ द कास्ट. आई एम नॉट कंसिडरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हियर कि ये आपका सॉलिड शाफ्ट है, इसको हॉलो बनाने के लिए वी हैव ड्रिल्ड इट और इसको हॉलो बनाया तो उसका भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगा 200-400 रुपया. दैट आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर. आई एम ओनली कंसिडरिंग दैट द मटेरियल इज सेम. सो इट मीन्स दैट द मटेरियल कास्ट ऑफ द shaft is same. You understand? In that case, if we will compare the solid shaft and hollow shaft in case of material, so you can say that there is no difference in that. उसमें आपको कोई difference नहीं लगेगा. But weight same है, but they are sustaining the different amount of the torques. Or you can say different strength means, different strength का क्या मतलब है कि this particular shaft, that is solid shaft, and this hollow shaft, both are having the different value of the torques to sustain without failure. इसका वैल्यू स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा और इसका स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा. दैट वी कैन प्रूव दैट, कैलकुलेट दैट. तो ये तो बाद में करेंगे, ओनली आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. तो इसमें स्ट्रेंथ आपका वेट सेम है, लेकिन अगर हमारा कंपैरिजन स्ट्रेंथ के बेस से करें तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा. कितना स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा, कहने का मतलब है कि ये कितना टार्क इससे ज़्यादा या कम सस्टेन कर सकता है विदाउट फेलियर. दैट वी विल सी देयर. दिस इज द वन वे टू कंपेयर द सॉलिड शाफ्ट एंड द हॉलो शाफ्ट. यू अंडरस्टैंड? सेकंड थिंग, सेकंड केस इज
सेकंड केस क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ विद डिफरेंट वेट्स। सेकंड कंपैरिजन है इक्वल स्ट्रेंथ with different equal strength with different weights। अब इसका क्या मतलब है, इक्वल स्ट्रेंथ विद डिफरेंट वेट्स। डिफरेंट वेट्स मीन्स स्ट्रेंथ तो ये जो दोनों शाफ्ट का है, दैट इज द solid shaft and hollow shaft, they are having the same strength, means they can sustain the equal amount of torque on both the shaft। that is solid shaft भी same torque को sustain कर सकता है, the hollow shaft that also sustain the same amount of the torque। still we can say that there must be some comparison। डिफरेंट वेट्स तो आपको पता है कि डिफरेंट वेट से हमें ये देखना है कि वेट इनका डिफरेंट होगा, दे आर सस्टेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ द टार्क। मीन्स अगर सेम टार्क दे आर सस्टेनिंग बिफोर फेलियर, स्टिल वी हैव टू सी दैट विच वन इज बेटर, विच वन इज लाइटर। कौन बेटर है, कौन लाइटर है, कि लाइटर होने के बावजूद भी वो सेम अमाउंट ऑफ द टार्क को सस्टेन कर रहा है। यू अंडरस्टैंड, लाइटर मीन्स व्हाट, जहाँ से हमें लाइटर से क्या मिलेगा कि एक शाफ्ट है जो लाइटर मीन्स हैविंग द लेस अमाउंट ऑफ द मटेरियल, सेविंग है जहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ द मटेरियल है, सो तभी तो वो आपका शाफ्ट है दैट इज लाइटर होगा। तो जहाँ पे हम मटेरियल का सेविंग करेंगे, मीन्स मटेरियल का सेविंग होगा, कास्ट का हमारा सेविंग होगा, यू अंडरस्टैंड, और उसके बावजूद स्टिल ऑन दैट द स्ट्रेंथ इट इज़ गिविंग द सेम अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ उसका सेम होगा, बट हियर वी कैन सेव द मटेरियल कास्ट, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द सेकंड वे टू कंपेयर द हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट, यू अंडरस्टैंड। जहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, दीज आर द टू कंडीशंस, इक्वल वेट्स विद डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड इक्वल स्ट्रेंथ विद डिफरेंट वेट। व्हाट डज इट मीन, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ देयर आर द टू वेज टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। वन मेथड that is called the analytical method। mathematically we can prove this thing। कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम एनालिटिकल वे से इसको प्रूव करेंगे कि कौन सा शाफ्ट आपका क्या कंपैरिजन है, बेटर है, क्या कंपैरिजन है। तो एनालिटिकल वे इज़ द वन मेथड टू प्रूव दिस थिंग, एंड द सेकेंड वन इज़ द लॉजिकल मेथड। वो हम बाद में इसके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द कौन सा मेथड, that is the mathematical analytical method, you understand। so this is, ये आपको क्लियर हो गया चीज़ें कि कंपैरिजन ऑफ द हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट क्या है। फर्स्ट है इक्वल वेट्स विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। इक्वल वेट्स मीन्स दे आर पुटिंग द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल बट दे आर सस्टेनिंग द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द टार्क बिफोर फेलियर। And second thing is equal strength, having the same amount of the strength but they are having the different weights। अब इन दोनों में we have to find the comparison। दोनों conditions को consider करके we have to find the comparison that which shaft is better, whether it is solid shaft or the hollow shaft, right। तो इसको आगे हम करते हैं, you understand। So this is the numerical to compare the solid shaft and hollow shaft। क्या है ये, जो फर्स्ट केस मैंने कंसिडर किया था, दैट इज़ द फर्स्ट केस, वेट्स आर इक्वल एंड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, राइट।
तो जहाँ से पढ़िए, फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट एंड द सॉलिड शाफ्ट। स्ट्रेंथ्स आर डिफरेंट ऑफ द सेम वेट। वेट क्या है इनका? सेम है, सेम वेट एंड सेम मटेरियल। वेट भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। और हॉलो शाफ्ट के केस में जो वैल्यू di/d0 वो दिया है 0.5, राइट। सो दिस इज़ द एनालिटिकल मेथड। अब देखिए इस किस्म का सेम कंडीशन है, एनालिटिकल मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा शाफ्ट दैट इज़ बेटर, वेदर हॉलो शाफ्ट इज़ बेटर और यू कैन से सॉलिड शाफ्ट इज़ बेटर, दैट वी कैन चेक। लेकिन मुझे बताइए आप, जो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट है, strength of the shaft, as you know that the strength of the shaft that is measured by this term, हम किससे मेजर करते हैं? J/R max. You understand? Strength of the shaft that is measured by this term J/R max. अब मुझे बताइए पोलर सेक्शन पोलर मूवमेंट क्या होता है, राइट। तो आपका पोलर सेक्शनल मॉडुलस, इसका पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। पोलर सेक्शनल मॉडुलस, so polar section modulus, what does it mean? It is the measure of the strength. ये क्या करता है? It measures the strength. It measures the strength of, it measures the strength of shaft. पोलर सेक्शन मॉडुलस से हम क्या मेजर करते हैं? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, और इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, और यू कैन से दैट इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। मीन्स how much maximum applicable torque this particular shaft can sustain without failure, right? So इससे हम, it is the measure of the strength, means it measures the strength of the shaft। इससे एक तो हम शाफ्ट की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं कि कितना टॉर्क जे मेजर कर सकता है, एंड सेकंड इसमें है क्या है? शेप एंड साइज, राइट। तो इसका जो एरिया है, इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पोलर सेक्शन मॉडुलस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। यू अंडरस्टैंड? polar section modulus, it depends upon shape of the and size। तो मैंने कहा था स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट दैट इज मेजर्ड बाय दिस J/R max। तो इसका मतलब पोलर सेक्शनल मॉडुलस दिस इज इक्वल टू J/R max। मीन्स जैसे जो आपका इक्वेशन था T/J, दिस इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन R max। देयरफॉर T is equal to tau max J/R max। You understand? So this is fixed। J जो आपकी वैल्यू होगी, this value J/R max, तो J आपका जो J/R max, इसको हम क्या बोलते हैं? This is the polar section modulus। समझाया? Complete value, that is polar sectional
मॉडुलस। इससे हम क्या मेजर करते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। J upon R max, that is the polar sectional modulus, and with this value we can measure the strength of the shaft. That is J upon R max, इसको हम डिनोट करते हैं J upon, that is J upon R max, this is equal to ZP। किससे डोनेट करते हैं हम? से डोनेट करते हैं ZP से। सो ZP, दिस इज द पोलर सेक्शनल मॉडुलस। अब जिस शाफ्ट का पोलर सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यू अंडरस्टैंड। और जिस शाफ्ट का पोलर सेक्शनल मॉडुलस कम होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, यू अंडरस्टैंड। तो पोलर सेक्शन मॉडुलस को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोलर सेक्शन मॉडुलस। और जैसे ये दो शाफ्ट हैं आपके, सॉलिड शाफ्ट एंड दिस इज हॉलो शाफ्ट, एंड वी वांट टू कंपेयर दिस solid shaft and hollow shaft, that which shaft is having the more strength. So what we do, we just calculate the value of the sectional polar sectional modulus, and then we will compare that value. If the polar sectional modulus of this solid shaft is greater than this hollow shaft, we can say that this shaft will sustain more torque. Or if hollow shaft is having the more value than the solid shaft, then you can say that the hollow shaft that will sustain more torque without failure, you understand. So ये important चीज़ थी, ये definition important थी, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन अभी जैसे अभी हमें इसका फाइंड आउट करना था स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द hollow shaft एंड सॉलिड शाफ्ट। हमें ये स्ट्रेंथ का रेशियो का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हमें स्ट्रेंथ का फाइंड आउट का मतलब ये है कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उससे हमें पता लगेगा कि स्ट्रेंथ हमारा किसका शाफ्ट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सॉलिड शाफ्ट का ज़्यादा है या हॉलो शाफ्ट का ज़्यादा है, यू अंडरस्टैंड। तो ये एक तरीका है हाउ वी कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। वी कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट बाय calculating the value of the polar sectional modulus, and polar sectional modulus is what? That is J upon R max, you understand। जिसका पोलर सेक्शनल मॉडुलस ज़्यादा होगा उस शाफ्ट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिसका पोलर सेक्शनल मॉडुलस कम होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा, राइट। नाउ कम टू दिस न्यूमेरिकल। अब इस प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट इफ द वेट्स आर इक्वल in both the cases, because we are making the comparison of the solid shaft and hollow shaft। और इसमें क्या है, ये दिया है weights are equal, material is equal, but strength is different। अब यही रेशियो हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेंथ कितना डिफरेंट है, राइट। सो यू कैन से TH, sorry, strength of that is TH upon TS, ये किसके बराबर होगा? ZPH upon ZPS, राइट। समझ आ गया आपको? व्हाट इज योर ZP? दैट इज पोलर सेक्शनल मॉडुलस। यही मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेंथ है that is measured by calculating the polar sectional modulus, or you can say the strength of the shaft that depends upon the polar sectional modulus, you understand। So ratio of this ratio of the strength of the hollow shaft and solid shaft, this is equal to this one, you understand। अब देखिए ZPH क्या है। ZPH मैंने आपको जैसे आपको बताया था ZPH, what is this? ये तो आपको पता है J upon
आर मैक्स, यही जेड पी एक्स मीन्स जे अपॉन आर मैक्स, यही है ना, जे अपॉन आर मैक्स, दैट इज द पोलर सेक्शनल मॉडुलस। जे इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हम हालो का ले लेंगे, तो जे एच ले लीजिए आप, जे एच हालो का, तो क्या आएगा ये, इज इक्वल टू पाई बाई 32, राइट। डी नॉट 4 माइनस पाई बाई 32, दिस इज डी नॉट 4 माइनस डी आई 4 डिवाइडेड बाई आर मैक्स क्या होगा, डी नॉट बाई 2, राइट। आर मैक्स होगा डी नॉट बाई 2, देयरफॉर जेड पी एच 2 ऊपर चला गया, ये आ गया पाई बाई 16, ये कट गया, राइट। आप क्या करो, D4 को आप बाहर ले लो, कामा ले लो, D रेज़ टू पावर 4, अंदर क्या आया 1 माइनस डी नॉट 1 माइनस डी आई रेज़ टू पावर 4, राइट, अपॉन डी नॉट, ये पूरा ही कर लो, राइट। 1 अपॉन डी आई अपॉन डी नॉट रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई डी नॉट, और डी नॉट इससे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा ये 3। सो देयरफॉर जेड पी एच दिस इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी नॉट क्यू 1 माइनस डी आई डी नॉट रेज़ टू पावर 4, यू अंडरस्टैंड, ऐसे लिख सकते हैं हम, राइट। तो ये आपका आ गया, आप इसको इस तरीके से लिख लो। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी नॉट क्यू 1 माइनस व्हाट इज योर डी आई अपॉन डी नॉट, राइट। इसका वैल्यू होता है के, हम इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाई के, यू अंडरस्टैंड। इसका के का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू है के, दैट इज के, बाद में हम पुट कर लेंगे इसको, के को डी जिसके बराबर रेज़ टू पावर 4, राइट। एंड दिस इज डिवाइडेड बाई पाई बाई 16 इंटू डी। अब ये क्या है, सॉलिड का है, तो सॉलिड का क्या आएगा, वही जे अपॉन आर मैक्स। तो जे क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे जे था इसका, इसको नोट कर लीजिए। बता देता हूँ आपको। अब देखिए जेड पी एस दैट इज़ फॉर द सॉलिड शाफ्ट, दिस इज इक्वल टू जे अपॉन आर मैक्स। तो जे क्या होगा जहाँ पे, पाई बाई 32 इंटू D4 एंड D by 2, where D is the diameter of the solid shaft. This 16, तो J आपका आ गया पाई बाई 16, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ गया पाई बाई 16 डी क्यू। पाई बाई 16। अब J और J आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपकी वैल्यू है therefore TH upon TS, this is equal to D naught upon D
का होल क्यूब है, राइट, इंटू 1 माइनस k raised to 4. दिस इज इक्वल. नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ k. k की तो वैल्यू हमारे पास है, ये आपका di/d0, दिस इज इक्वल टू डे, दैट इज 0.5. k की वैल्यू वी आर हैविंग, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d0/d, राइट. तो d0/d का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस वैल्यू हम ये कंडीशन लेंगे. कौन सा कंडीशन है? सेम weight of the solid shaft and weight of the hollow shaft, both are equals. So we will take this condition that weight of the solid shaft and weight of the hollow shaft, that is equal to same. So you can say that ये तो आ गया. So in order to calculate d0/d, in order calculate d0/d, क्या करेंगे हम? We will take this condition, weight of hollow shaft, this is equal to weight of solid shaft, right. अब weight कैसे निकालेंगे हम? weight of the hollow shaft, this is equal to weight of, ये निकालने के लिए चलो इधर ही लिख लेते हैं. सपोज अगर हमें किसी बॉडी का वेट निकालना है, वेट ऑफ ए बॉडी, मैं आपको समझाता हूँ पहले. तो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, राइट. वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं लिख लेता हूँ गामा, एंड वॉल्यूम जो है that is A into L, where A is the cross section area of the body and L is the length of the body. You understand? So this is how we can calculate the weight of the body. Weight of the body, gamma RAL, that is the weight of the body. You understand? तो इसको मिटा देते हैं. You understand this? तो ये दिया है weight of, क्या है आपका? weight of hollow shaft, this is equal to weight of hollow shaft, this is equal to weight of solid. हॉलो शाफ्ट का वेट सॉलिड शाफ्ट के वेट के बराबर. तो हॉलो शाफ्ट का में क्या आएगा? दैट इज गामा इनटू एरिया ऑफ द हॉलो शाफ्ट क्या होगा? π/4 d0² माइनस d I² एंड इनटू L, where L is the length of the shaft, right? This is equal to π/4 d², that is gamma into π/4 into d² into L. गामा और गामा वेट पर यूनिट वॉल्यूम
दोनों का सेम होगा बिकॉज द मटेरियल इज सेम, राइट। एल भी आपका जे होगा, π/4 जे होगा, यू अंडरस्टैंड। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगा, दिस इज इक्वल टू तो आपके पास आ गया देयरफॉर d0 स्क्वायर माइनस di स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। d0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है d0 d, यू अंडरस्टैंड दिस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, d0 d को हमें फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी कैलकुलेट दिस, तो d0 स्क्वायर जहाँ से आप कॉमन ले लें, d0 स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस di/d0 का होल स्क्वायर इंटू d स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। इसको मिटा दीजिए, इसको याद रखिएगा मैं पुट करने के लिए बाद में। right, so d0 square or you can say d0 square upon d square, this is equal to 1 upon what is your this di upon d0, this is equal to k, जो हमें प्रॉब्लम में दिया है, this is equal to k, so this you can say 1 minus k square, you understand, 1 minus k square। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, आपका क्या इक्वेशन था उसमें, टी एच अपॉन टी एस के केस में व्हाट इज़ द इक्वेशन, d0 अपॉन d का होल क्यूब, दिस इज द इक्वेशन। सो व्हाट इज योर इक्वेशन, ये पहले हमने जो निकाला था टी एच, दिस इज d0 अपॉन d का होल क्यूब 1 माइनस k4, चेक कर लीजिए यही था, टी एच अपॉन टी एस that is d0 upon d का whole cube, this one, right। तो इसमें आप वैल्यू आप कर लीजिए, निकाल लीजिए, d0 upon d, this is equal to 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वेयर, राइट। हमें किसका वैल्यू चाहिए, d0 d का, सो दिस इज इक्वल टू, पुट कर लीजिए वैल्यू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, दिस इज गिवन द वैल्यू ऑफ k, दैट इज di अपॉन d0, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। देयरफॉर जहाँ पे लिख लीजिए, देयरफॉर d0 अपॉन d की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए हाउ मच इट इज़, दैट इज़ 1.1547, दैट इज़ 1.1547, so this is 1.1547, so this is the value of d0 upon d, यू अंडरस्टैंड। अब d0 अपॉन d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर टी एच अपॉन टी एस, दिस इज इक्वल टू 1.1547
0.47 इंटू 1 माइनस के क्या है 0.5 रेज़ टू पावर 4। तो इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट द वैल्यू, कितना वैल्यू है इसका, हाउ मच द वैल्यू, दिस इज 1. This is 1.4983. So this is TH, that is TH upon TS. This is equal to 1.498. You understand? So आप कह सकते हैं जो हालो शाफ्ट का टार्क है वो कितना ज़्यादा है, जहाँ पे यू कैन से hollow shaft that can take almost 49% or sustain 49% more torque than the solid shaft. You understand? तो इसका हम लिख लेते हैं कंपैरिजन, जहाँ पे इसको मिटा देंगे। So TH upon TS, this is equal to 1.4983. So it means that इसका क्या मतलब हुआ, that is TH is equal to 1.4983 into TS, right? Means hollow shaft can carry or sustain, कुछ भी लिख लो, (49% more torque than solid shaft. You understand? तो this comparison you have seen कि hollow shaft जो है that can carry or sustain 49% more torque than the solid shaft. Weights are equal, means material are equal, but still hollow shaft में कितनी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, टार्क की कैरिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, दैट इज़ 49% मोर देन द सॉलिड शाफ्ट. सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ द hollow shaft and solid shaft, and you have seen that hollow shaft is more better as compared to the solid shaft in case of carrying the strength. You understand? Strength के केस में if both the shaft are having the same weight, same material, same length, but hollow shaft can sustain 49% more torque than the solid shaft. You understand? So this is the comparison, very amazing comparison. You have seen that. भाई हम तो ये solid shaft ही इस्तेमाल करते हैं. Why we are not using the hollow shaft then? If it is having the more torque carrying capacity, why we are not using? Because जहाँ पे जो stress concentration है वो तो हमारा मशीन डिज़ाइन में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन का, एंड दिस वी आर डिज़ाइनिंग, जो हम जहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं वी आर नॉट कंसिडरिंग द स्ट्रेस कंसंट्रेशन. हम सिंपली जहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिटिकल इसका यू कैन से डेरिवेशन ड्रा कर रहे हैं कि विच शाफ्ट इज़ मोर. बट अगर हम अदर फैक्टर्स लें जैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर, बिकॉज इन केस ऑफ द hollow shaft
स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा होगी, तो वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से कि हम यूजली जो है हॉलो शाफ्ट को नहीं लेते, प्रैक्टिकल वे में नहीं लेते। बट अगर हम ये थ्योरेटिकल बात करें, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो फैक्टर है उसको हम इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें, तो यू कैन सी हियर दैट द हॉलो शाफ्ट इज मच मोर बेटर देन द सॉलिड शाफ्ट इन केस ऑफ torque carrying capacity. You understand? Or you can say that the strength of the hollow shaft is much more, almost 50% you have seen here. It is almost 50% more than that of the solid shaft. This is the one condition. Now the second condition is when the strength is same and the weight is different. Strength same है means torque carrying capacity of the shaft is same, लेकिन उनका weight different है, तो उस केस में that we have to see कि विच शाफ्ट इज़ लाइटर, कौन सा शाफ्ट लाइटर है, और लाइटर होने के बावजूद वो उसका जो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है वो सेम है, दैट वी हैव टू सी। तो ये पहला तो आपका एनालिटिकल वे में यू हैव प्रूव दैट। नाउ सेकंड वन इज दैट द स्ट्रेंथ इज सेम equal strength with different weights. Second condition, equal strength with equal strength with different weight. Let us explain this thing first. So this is the second condition जहाँ पे है कि find the ratio of find the ratio of hollow shaft, find the ratio of weights of hollow shaft and solid shaft, then the strength, length when the strength, material and length are same, right? The value of K is given. K का वैल्यू जो है di upon d naught, this is equal to 0.5. This is given, right? So this is the second method. Because here you can see here strength is same. तो ये बताया कि when the strength, material and length are same, we have to find the ratio of the hollow shaft, weight of hollow shaft and solid shaft. You understand? हमें hollow shaft का और solid shaft का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है. You understand this? That is WH upon WS. हमें this ratio we have to find out the ratio of this we have to find out. अब WH क्या है? वेट हमने निकाला था जब लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है. तो व्हाट इज दिस वन? दैट इज
gamma into AH into L. This is सॉलिड का क्या आएगा, गामा इंटू AS इंटू L. यू अंडरस्टैंड? ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम किया था हमने, तो वी हैव कैलकुलेटेड द वेट कि कैसे वेट निकालना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम करके गामा इंटू AH इंटू L डिवाइडेड बाई दिस. सेम मटेरियल है, लेंथ सेम है, तो गामा J, दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल. Therefore WH is equal to AH upon AS. You understand? Area of the hollow shaft divided by the area of the solid shaft. Or you can say WH upon WS. This is equal to hollow shaft का area क्या होगा? That is pi by 4 into d naught square minus di square divided by pi by 4 into d square, right? Pi by 4 into d square, where d is the diameter of the solid shaft. J और J आपका कैंसिल हो गया. So therefore WH upon WS, this is equal to d naught square minus di square upon d square. You understand? और इसमें आप d naught को कॉमन ले लें, आप d naught को कॉमन ले लीजिए, d naught स्क्वायर को, तो d naught स्क्वायर इज कॉमन, बीच में आया 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन d naught स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? Therefore WH upon WS, this is equal to d naught upon d का होल स्क्वायर. मैं कैपिटल D ले लिया यहाँ पे, आप स्मॉल d भी ले सकते हैं. पीछे वाली प्रॉब्लम में मैंने स्मॉल d नॉट उस दे लिया था, तो कुछ भी आप लिख लीजिए. सो d नॉट अपॉन d का होल स्क्वायर and 1 minus k का square. You understand? Because di upon d naught, this is equal to k. You understand? तो ये आपका इक्वेशन हो गया. This is your equation. WH upon WS upon WH upon WS, this is equal to d naught upon d का whole square. This is equal to this one. तो जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, जहाँ से दोबारा देखिए. Because strength is same. This is the second condition I am taking. Strength of both the shafts are same. That is solid shaft and hollow shaft. But their weight is, you can say that is different. In that case, we have to find that which shaft is better, which shaft is lighter. क्या वो solid shaft better है या hollow shaft better है? That we have to check. And this is the analytical way to find. So what is this? That find the ratio of the weight of the hollow shaft and the solid shaft, where strength, material and length are same. This is the question. जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा ही बनेगा कि वेट हमें इसका रेशियो निकालना है, जबकि स्ट्रेंथ, मटेरियल, लेंथ सेम होगा. तो रेशियो ऑफ द वेट वी हैव टेकन WH बाई WS, और वेट हमने निकाला था वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम करके. तो दिस इक्वेशन वी हैव गॉट इन माय फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने कैलकुलेट किया था, दैट इज गामा इंटू A इंटू L. दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, राइट? सो गामा इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम. So this is gamma into AH. AH, that is area of the hollow shaft, and L is the length. And likewise gamma into AS into L.
तो ये चीज़ें आपस में सेम है बिकॉज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज सेम एंड द वैल्यू ऑफ गामा दैट इज आल्सो सेम, मटेरियल इज सेम, तो वैल्यू ऑफ गामा इज सेम. सो ये चीज़ें आपस में क्या हुआ, क्रॉस हो गया. सो यू गॉट दिस रेशियो AH/AS. सो WH/WS इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए एरिया में. तो कन्वर्ट करने के बाद एंड वी गॉट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको मिला. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D नॉट अपॉन D. हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, D नॉट अपॉन D का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको बता दीजिए. So in order to find the value of D naught upon D, हमारा कंडीशन क्या था, स्ट्रेंथ इज सेम, राइट. तो क्या दिया है आपको, स्ट्रेंथ आपका सेम है. स्ट्रेंथ इज सेम फॉर hollow and solid shaft. स्ट्रेंथ आपका हालो और सॉलिड शाफ्ट का सेम है. तो स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, दैट इज ZPH सेक्शन मॉडुलस है ना, पोलर सेक्शन मॉडुलस. दिस इज इक्वल टू ZPS. यू अंडरस्टैंड, ZPH एंड Z. तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज π/16 इंटू D नॉट क्यूब 1 - K4. ये हमने निकाला था पीछे, देख लीजिए दोबारा. ZPH अगर निकालना है हमें, दिस इज इक्वल टू J/R मैक्सिमम, यही है J/R मैक्सिमम. So J is how much, that is π/32 into D naught 4 minus DI4, right. R maximum क्या आ गया, that is D naught/2. कैपिटल कर लीजिएगा, ये मैं स्मॉल में कर रहा हूँ, दैट इज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल में शो किया. यू अंडरस्टैंड. तो इसमें आप D नॉट 4 को बाहर ले लीजिए, π/32 इंटू D नॉट 4, बीच में क्या आया 1 - DI अपॉन D नॉट 4, राइट, डिवाइडेड बाई D नॉट/2. J और J कैंसिल हो गया, 3 2 J 16 हो गया. ये आपका आ गया π/16 D नॉट क्यूब इंटू 1 - K4. ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज K. तो ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, राइट. सो ZPH दिस इज π/16 इंटू D नॉट क्यूब इंटू 1 - K4. दिस इज इक्वल टू π/16 इंटू D क्यूब, राइट. ये D आप बड़ा कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने बड़ा लिया है. राइट. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, D नॉट/D. ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप कह सकते हैं देयरफॉर D नॉट अपॉन D का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 - K4, राइट. और D नॉट अपॉन D नॉट अपॉन कैपिटल D कर लो, ये लिया वैल्यू. तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 - 0.5 रेज़्ड टू पावर 4, राइट. तो ये D नॉट अपॉन D का वैल्यू कितना आया बताइए चेक करके मुझे. D नॉट अपॉन D, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, D नॉट अपॉन D, दिस इज
1.017. So this value is 1.017, right? So the ratio of the outer diameter of the hollow shaft and the diameter of solid shaft, that is equal to 1.017. तो जहाँ पे आप पुट कर लीजिए वैल्यू, पुट द वैल्यू हेयर, therefore WH upon WS, this is equal to 1.017 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, this is 1 minus 0.5 का स्क्वायर. You understand? So कैलकुलेट करके बताइए how much this is. This is 0.783. तो जे आपका आया, जहाँ से इधर लिख लेते हैं. तो जे वैल्यू आपकी आ गई, इधर लिख लो 0.783, राइट, 0.783. तो जहाँ से देखिए आप, therefore जहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, WH upon WS, this is equal to 0.783, right? Therefore WH, this is equal to 0.783 into WS. तो जो आपका हॉलो शाफ्ट है वो आपका क्या है, लाइटर है एज कंपेयर टू दिस सॉलिड शाफ्ट, राइट? सो दिस इज आल्सो वेटर. सो यू कैन से कंक्लूजन क्या आ गया यहाँ पे, कंक्लूजन क्या आ गया, एनालिटिकल जो कंक्लूजन निकाला हमने, हॉलो शाफ्ट इज बेटर बिकॉज इट इज lighter in weight than solid shaft. You understand? जहाँ से क्लियर हुआ? तो कंपैरिजन हमने एनालिटिकल मेथड से हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का किया, और दोनों केसेस में when the weights are equal and strength is different, and when the strength is same, weights are different, दोनों cases में we have observed this thing that hollow shaft is much better than the solid shaft, right? तो आपने देखा यहाँ पे कि hollow shaft का जो लाइटर है, कितना लाइटर है, ये सॉलिड शाफ्ट से ऑलमोस्ट 0.783 टाइम्स जो है लाइटर है. यू अंडरस्टैंड दैट? बट इसकी जो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज सेम. इट मीन्स दैट देर इज द सेविंग ऑफ द मटीरियल. तो सेविंग ऑफ द मटीरियल अगर आपने निकालना है WS माइनस WH डिवाइडेड बाई WS इंटू 100 करके, यू कैन कैलकुलेट, राइट? सो देर इज द सेविंग ऑफ द मटीरियल कास्ट, or you can say saving of the material cost, and still it is having the same torque carrying capacity. Torque carrying capacity इसका सेम है, लेकिन इसका weight जो है that is lighter as compared to the solid shaft. You understand? So conclusion finally we can say
that the hollow shaft, they are better in all respect than that of the solid shaft. But there is only one point for which purpose we are not using it practically. Reason is because in case of the hollow shaft, stress concentration factor जो है, that is very high in that case. स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बहुत हाई है, इसके कारण स्ट्रेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी, उसमें फेलियर के चांसेस आपके ज़्यादा डेवलप होंगे. सो वी डोंट यूज़ द हॉलो शाफ्ट, वी ऑलवेज कंसिडर द सॉलिड शाफ्ट. दिस इज़ द रीज़न. सो दिस इज़ द वे दैट हाउ वी कंपेयर द hollow shaft and solid shaft by the analytical method. Now the second one is logical method. Logically, how we can explain this? This I will also tell you that what is how we can compare the hollow shaft and solid shaft, and we say that which shaft is better. Logical method. Practically तो हमने analytically we have proved that the hollow shaft is better. Now logically we will prove that how the hollow shaft is better, that we can understand this. So let us now compare this hollow shaft and solid shaft. Which shaft is better? That is hollow shaft and solid shaft, by giving the logical explanation. Analytical method में तो हमने कर दिया. अब देखिए logical explanation से भी हम इसको compare करेंगे and we will discuss this thing. We will tell you that how we can say that the hollow shaft is much better than that of the solid shaft. You understand? तो जैसे आपको पता है, you know the torsional equation. अगर strength of the shaft क्या है आपकी, तो strength of the shaft का equation है आपका T upon J. This is equal to tau max upon R max, right? This is the equation of the torque, right? Or you can say that T is equal to tau max to J upon R max. ये तो आपने एक्सप्लेन किया. As I told you that the torque जो है that depends upon the three things, that is tau max, J and R max के ऊपर डिपेंड करेगा. You understand? J means polar moment of inertia, R max means outer diameter, and sigma maximum, tau maximum, that is fixed material है तो ये सेम होगा, because both are having the same material. तो tau max की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी. You understand? So finally you can say means T depends upon, जो आपका T है फाइनली वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, T depends upon J upon R max, राइट. अब R max क्या है? R max means outer diameter. जैसे J आपका शाफ्ट है, सेम, ये थोड़ा मैंने डिफरेंट कर दिया, ये सेम एक्सिस के ऊपर होना चाहिए था, राइट. तो ये इसका आर मैक्स इसका जे हो गया और जे इसका आर मैक्स हो गया. तो इस केस में हमने जो वी हैव कैलकुलेटेड, हमने जो प्रॉब्लम निकाला था कि आउटर का आर मैक्स मीन्स आउटर डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट. तो आउटर डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट जो था वो क्या था, वो ऑलमोस्ट जो हमने वैल्यू पर कैलकुलेट की थी, आई थिंक 1.1547 इंटू डी, लाइक दिस. कुछ वैल्यू हमने कैलकुलेट किया जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया था. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट द आउटर डायमीटर of the hollow shaft and diameter of the solid shaft is not having much difference.
only you can say almost it is 15% difference there. तो ये जो आउटर डायमीटर है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आउटर डायमीटर ऑफ द hollow shaft and solid shaft is not having much difference. So you can say that this parameter does not play that much part in case of calculating the strength of the shaft. तो strength of the shaft जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ हैविंग ए वेरी स्मॉल डिफरेंस हियर. जो आउटर डायमीटर एंड outer diameter of the solid shaft and diameter of the outer diameter of the hollow shaft and the diameter of the solid shaft, they are not having much difference. उसमें difference ज़्यादा नहीं, only 15%. So we can say that this is not a big difference. So we can say that this will not affect the torsion of the shaft. अब difference कहाँ पे create होगा? जो आपका difference था स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट में, वो कहाँ पे क्रिएट होगा, कहाँ से होगा? वो होगा जे की वैल्यू से. यू अंडरस्टैंड? वो कहाँ से क्रिएट होगा? जो वैल्यू ऑफ जे है, जो जे की वैल्यू है वहाँ से डिफरेंस ऑफ ये क्रिएट होगा. और जे आपको जैसे कि ये क्या है, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है. यू अंडरस्टैंड? ये क्या है? polar movement of inertia, and this is equal to area into distance square. यही इसके बराबर है, area into distance square, right? Let us come to this hollow shaft. ये hollow shaft का केस ले लेते हैं. This is the center point, right? नॉर्मल एक्सिस का, राइट? एंड यू कैन सी दैट ये जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज़ अ हॉलो पोर्शन, जहाँ पे आपको कोई एरिया नहीं है. यू अंडरस्टैंड दिस? कोई मटेरियल ऑफ द शाफ्ट नहीं है, कोई इसका एरिया नहीं है. दिस इज़ अ हॉलो. अब जो एरिया शाफ्ट का है, दैट इज स्प्रेडेड हियर, इस पोर्शन के ऊपर है. You can say that the area of the shaft that is distributed far away from the axis of the shaft, इसका डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है. far away from the center of the shaft. Whereas in case of solid shaft की बात करें तो सॉलिड शाफ्ट का तो एरिया बिल्कुल इसके पास, सारे का सारा इसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ भी है जहाँ भी है. सो इट मीन्स दैट पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. जितना डिस्टेंस एरिया का दूर होगा नॉर्मल एक्सिस से, उसका जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. यू अंडरस्टैंड दिस? उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. सो एज I told you that in case of the hollow shaft, the area of the hollow shaft that is distributed far away from the center of the shaft or from the axis of the shaft, दूर है. It means that जो polar movement of inertia है, जहाँ आपका जो ZP की वैल्यू है, what is your ZP? ZP क्या है? polar sectional modulus. जो आपका ZP का वैल्यू है, पोलर सेक्शनल मॉडुलस मीन्स J अपॉन R मैक्स ऑफ हॉलो शाफ्ट दैट इज ग्रेटर देन ZPS मीन्स सॉलिड शाफ्ट का जो सेक्शनल मॉडुलस है उससे क्या होगा? ज़्यादा होगा. बिकॉज क्यों ज़्यादा होगा? J ऑफ hollow shaft is more. hollow shaft का जो J है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या है? ज़्यादा है as compared to the J of solid shaft. You understand? तो JH is more than JS.
सो इट मीन्स दैट ZP जो आपका हालो शाफ्ट का है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू ZPS. And as I told you that if we have to compare the strength of the shaft or if we have to calculate the strength of the shaft, how we can calculate the strength of the shaft? By calculating the value of the polar section modulus, that is J upon R maximum. You understand? और जिसका J upon R maximum means polar section modulus ज़्यादा होगा, उसका जो टार्क होगा, जो टार्क कैरिंग कैपेसिटी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. यू अंडरस्टैंड? सो जहाँ से भी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, जहाँ से भी आपने देखा कि इसका एरिया सेम होने के बावजूद, अब एरिया कैसे सेम होगा ये भी हम देख लेते हैं. देखिए अब क्वेश्चन है कि जब इसका बेट सेम था, जो पहली कंडीशन हमने लिया था, व्हेन द बेट्स आर सेम, तो मीन्स बेट्स आर सेम. बेट्स किसका, हालो शाफ्ट का एंड सॉलिड शाफ्ट का सेम है. मीन्स WH दिस इज इक्वल टू WS, राइट. तो WH क्या आया, बेट क्या आया, गामा इंटू AH इंटू L. दिस इज गामा इंटू AS इंटू L. गामा और गामा L कैंसल, J और J कैंसल, देयरफॉर AH इज इक्वल टू AL. तो जहाँ पे देखा आपने AS, जहाँ पे देखा कि जो एरिया था, साइज ऑफ द एरिया दैट इज सेम. साइज ऑफ द एरिया व्हेन द बेट्स आर इक्वल, size of the area of the solid shaft and the hollow shaft is same, but still we say that torque carrying capacity of the hollow shaft is more and solid shaft is less. Why? Because area का size same है लेकिन इसका shape जो है वो same नहीं है. और जैसे आपको बताया था कि J upon R max that depends upon the shape and size. साइज के ऊपर भी और शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है. अब शेप पे देखिए, शेप कैसे इसका डिफरेंट हुआ. ये हालो शाफ्ट था, तो जहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द एरिया, एरिया दोनों का सेम है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, और यू कैन से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस, तो जहाँ पे देखिए दिस एरिया इज distributed far away from the center of the axis, whereas the area that is very near or near to the center of the axis. तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, साइज जो था दैट इज डिफरेंट देन दिस. यू अंडरस्टैंड दैट? उसका जो साइज था वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. किस तरीके से डिफरेंट हो गया कि एरिया तो सेम है, लेकिन एरिया ये सारे का सारा जहाँ पे ही कंसंट्रेट हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है दिस इज सेपरेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो इसकी है फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस. तो ये भी आपको जहाँ से आपको यू गॉट दिस पॉइंट देयर कि दैट J upon R max that doesn't not only depends upon the area but that depends upon the size also, shape also. साइज़ के ऊपर नहीं है, शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो जहाँ से देखा आपने कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जहाँ से देखा कि जो आपका ZPH है, पोलर सेक्शनल मॉडुलस ऑफ दिस hollow shaft, that is more than that of the polar sectional modulus of the solid shaft. और अगर hollow shaft का sectional modulus is more, so it means that the torque carrying capacity of the hollow shaft is more, or you can say hollow shaft can sustain more torque than that of the solid shaft. You understand? So it means that logically we have proved this thing, that hollow shaft is better than that of the solid shaft. This is the comparison of the solid shaft and hollow shaft. So I can say that जितना भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, जो भी इसके कंपैरिजन्स के बारे में हमने
डिस्कस करना था, इसको बड़ी मिन्यूटली इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करके हर चीज़ को बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। और अब आई थिंक दिस इज़ आप लोगों के लिए ये कोई भी जहाँ से कंसेप्ट अगर आपको आता है एग्ज़ाम में किसी भी किस्म का, तो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, आपको होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं, कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो हमने जहाँ पे छोड़ा हो। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस कंपैरिजन ऑफ द hollow shaft and solid shaft. So thank you very much.